हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हाउ हिंदू नेशन इंडोनेशिया वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो देखते हैं क्या कैसे वो कन्वर्ट हो गए थे वो इस्लाम में। और क्योंकि पहले वहाँ पे हिंदुइज्म था। हिंदुइज्म तो अभी भी फॉलो किया जाता है। वहाँ के जो एयरलाइंस वगैरह हैं सब पे गरुड़ हैं और उनके जो नोट हैं ऐसे जो होते हैं उन पर गणेश जी की पिक्चर्स हैं, तो वो आज भी फॉलो करते हैं। इंडिया से ज़्यादा तो फॉलो करते हैं, भले वो मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन इंडियन से ज़्यादा फॉलो करते हैं वो हिंदुइज्म को। यहाँ पे तो इतनी देर में दंगे हो जाएंगे अगर मालूम नाम भी ले दिया। ऐसा लगता है जैसे ये हिंदू राष्ट्र क्या ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप मुस्लिम राष्ट्र में रह रहे हो। मुझे तो ऐसा ही फील होता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कहीं से भी सेकुलर कंट्री है। सेकुलर तो बिल्कुल नहीं लगती मुझे, क्योंकि आप बोल नहीं सकते, कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इंडोनेशिया में मुस्लिम्स होते हुए भी वहाँ पे हिंदुइज्म फॉलो किया जाता, तो अच्छी बात है। पर देखते हैं कि क्या रीज़न था कि वो जो है कन्वर्ट हो गए। तो देखते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप इस चैनल पे चले जाएगा फैक्ट टैक्स, और वहाँ पर जाने के बाद में आप और बची हुई जो वीडियोस हैं आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। Whenever someone says Indonesia, first thing comes to our mind is Bali, which is one of the top tourist destination in world. Today, Indonesia is nation of 87% of Muslim majority, but how many of you know that once the Indonesia was Hindu majority country where Hinduism and Buddhism was practiced in each and everyday life? But question pops in everyone's mind is how Hindu majority country converted to Islamic nation? What is the present situation of Indonesia and Bali? For next 3 minutes, I am going to tell you historical facts of Indonesia, which was invaded by Islamic kings and later converted majority of Hindus to Islam by destroying Hindu monuments. Stay tuned and watch full video. Welcome back to Fact Desk. I will be uploading short and simplified information in one video every alternative day with most interesting facts and trending topics which everyone should have knowledge. If you not yet subscribed the channel, please subscribe and press bell icon. Let's begin our video from 3rd century BC, where South India was under the Chola kingdom, which has largest navy base at the time. In process of expansion, Cholas captured Sri Lanka, Maldives, Malaysia, and finally they captured Indonesia, which is land of 17,000 islands. Later, Hindu kings Srivijaya, Shailendra, Mataram, Majapati and many kings ruled their kingdom by spreading the roots of Hindu culture and tradition into the people of Indonesia. It was in 10th to 12th century where Indonesia started trades with India, and also kings of Indonesia gave shelter to Buddhist preachers, and by the end of 12th century, Indonesia was completely the land of Hindus and Buddhists. Everything is fine and peace until Arab Sultan started trade in 13th century, and it was Sultan Malik Al-Salih and Sultan of Malacca Iskandar Shah who invaded Indonesia by capturing islands. Like history says, these idiot invaders have problem with every other religion, and they started destroying the monuments of Hindu and Buddhist on the name of religion. Later, these moron kings started imposing Islam religion on people by forcing them to convert to Islam. Due to poverty and no other option left, many people in Indonesia converted to Islam, and also there are people who sacrificed their life on the name of Dharma. And few people who don't wanted to convert to Islam started leaving Muslim ruled island and shifted to Bali, making Bali island with majority of Hindus. It was 16th century, again Muslim rulers started to eye for Bali, but it was Dutch who entered Indonesia by attacking Muslim rulers. To fight against Dutch, Sultan takes support of Ottoman Turks, and Ottoman Turks fought with Dutch in waters, but they could not stop Dutch invasion in Indonesia. Even though Dutch looted wealth, they supported all religions including Hindu, Muslim, Christian by giving freedom of religion to every citizen by protecting Hindu and Buddhist monuments. After freedom from Dutch, officially the Republic of Indonesia formed government, and later government of Indonesia started imposing Islamic conversion on the people of Bali. But with support of Indian government and Dutch, people of Bali formed autonomous government by protecting the culture of Hinduism and Buddhism. As per 2010 census, total population of Hindus in Indonesia is just 1.7%, in which Bali has 83% of Hindus, which is one of the top tourist destination in world. In present day, you can find thousands of temples, Hindu monuments, cultural music, art and also idols in every street of Bali. But interesting thing is there is no god or any idols inside temples. Yes, you heard it right. People of Indonesia build temples and special places inside temple, believing that their ancestor souls will visit temples every day. And we can see Rama, Krishna, Shiva and many idols inside temples in India. But in Bali, we can see Hindu gods and ancient Hindu warriors like Bhima, Arjuna and not to forget Buddha idols in every street of island. And people of Bali never pray any of these idols because they placed these idols for cultural representation of Dharma protectors by designing city beautifully. And when we talk about culture of these people, it is mandatory to wear
wear dhoti before entering into temple, and also they should take bath in temple wells like how Indians does. With art and culture, people of Bali give special importance to Ramayana and Mahabharata by chanting Gayatri mantra for 3 times a day. And in recent archaeological evacuation, many ancient idols and shivlingas found, which is said to be from the time of 1st century. If we start looking into the history of Indonesia, then we can proudly say that it is connected deeply with the culture of India. That's the end of short and simplified video on Indonesia with Indian culture. And if you think this video has facts, then kindly share this video and spread knowledge, and don't forget to comment your views in comment section. Also, don't forget to subscribe our channel for more interesting and trending videos. और इस वीडियो में जैसे इन्होंने बताया कि हाउ हिंदू नेशन इंडोनेशिया वाज कन्वर्टेड। तो क्या था कि पहले भारत में जो चोलास एम्पायर था, ठीक है, ये मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले ही, तो चोलास एम्पायर के बारे में। तो उन्होंने क्या था कि जो जैसे साउथ इंडिया था ना, साउथ, उससे उन्होंने नीचे के सारे पोर्शन जो थे, श्रीलंका हो गया और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जितने भी हैं उधर के सारे वहाँ पर हिंदुइज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, वहाँ पे हिंदुइज्म फैलाया था। लेकिन इनकी तरह नहीं फैलाया था गले काट काट के, ठीक है। और जो रिलीजन थे उन्होंने जैसे लोगों पर अत्याचार करके रिलीजन फैलाया था, उस तरीके से नहीं थे लोग। यहाँ पे नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि लोग अपने आप ही प्रभावित हो जाते थे। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ मतलब लोग प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो आपके गले काट रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि खुद से ही अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और अपने आप को उस रहन सहन कर लेते हैं। ऐसे ही हिंदुइज्म था। तो उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर इन्वेडर्स आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अरब से ये जो क्या बोलते हैं, कौन सा था वो, तो उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया वहाँ पे। और वहाँ पर उन्होंने 2 ही ऑप्शन रखे थे, जैसे कि इंडिया में रखे हुए थे या तो मर जाओ या फिर कन्वर्ट हो जाओ। तो ये 2 ऑप्शन रखे हुए थे। तो क्या थे, वहाँ के जो गरीब लोग थे, उन्होंने जो गरीब थे वो क्या है कि उन्होंने कन्वर्ट हो गए, उनके पास कोई अदर ऑप्शन था भी नहीं। और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अभी 2 मंदिरों को तोड़ दिया वहाँ पे, रॉकेट लॉन्चर से 2 मंदिरों को तोड़ दिया है। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है। तो मानसिकता मैंने ये देखा है कि जो रिलीजन है ये दूसरे रिलीजन को बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इनके अंदर मतलब सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन ये किसी और देश में जाते हैं ना, तो इनको सेकुलर पूरा भर भर के चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। लेकिन जैसे ये पूरे हो जाते हैं तो ये किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। इनकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये अलाउ नहीं करते हैं। और पाकिस्तान में कुछ ही बचे हुए हैं, वो हिंदूज भी इतने डर के रहते हैं, वो बेचारे कुछ बोलते भी नहीं हैं। उनकी लड़कियों को उठा लेते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं, उनकी ज़मीन पर बस कह देंगे ये हमारी ज़मीन है, और उसको जो है ये उनकी हो जाती है, ठीक है। तो बड़ा ही अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन भगवान देखता है, कर्मा पे बिलीव रखते हैं। अगर आप उसके साथ में गलत कर रहे हैं ना, हिंदुओं के साथ में, तो इसका मतलब वो जरूर होगा हिसाब किताब। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया पे आते हैं हम। इंडोनेशिया पे फिर उसके बाद में जैसे ये आज़ाद हो गए थे, तो अभी तो फिलहाल ज़्यादा हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि वहाँ पे हिंदुइज्म को पूरा फॉलो किया जाता है। और वो धोती वगैरह पहनते हैं जब मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो उनके जैसे साउथ के मंदिरों में भी है कुछ इस तरीके से कि आप साड़ी पहन के जा सकते हैं और कोई चीज़ पहन के नहीं जा सकते हैं। जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वहाँ का भी है, ठीक है। और वहाँ पे मतलब जो जितनी भी है जो कल्चर यहाँ पे था वो सेम वहाँ पे वो बड़े ही डीपली, बड़े ही अच्छे तरीके से वो आज भी फॉलो करते हैं। तो अच्छी बात है। और वहाँ पे जो मंदिर है, पहले तो वहाँ पे हिंदुइज्म था, उसके बाद में क्या है कि वहाँ पे बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। तो वहाँ पे बुद्ध के बहुत सारे मोन्यूमेंट और ये बहुत सारी मूर्ति वगैरह बनाई गई थी। लेकिन जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने क्या, उनका सबसे पहला काम यही होता है कि वो जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले मोन्यूमेंट्स जो होते हैं या फिर उनके जो स्ट्रक्चर वगैरह जो भी होते हैं, जो भी कुछ होते हैं ना, सबको तोड़ फोड़ कर देते हैं। इंडिया में तो कम से कम 30-40 हज़ार, पता लाखों मंदिर को तोड़ा है इन्होंने, लूटा उनको, खूब लूटा, खूब तोड़ा। और वहाँ पे उधर कश्मीर में इतने बड़े बड़े मंदिर थे, उन सबको तोड़ दिया, उनको शैतान की गुफा बोलने लगे। मतलब इस तरीके से इन्होंने बहुत नुकसान किया, जितना हो सकता था ना उतना इन्होंने नुकसान किया, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने इंडोनेशिया में किया। वहाँ पे भी क्या है, जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी या फिर और भी थी, उन सबको इन्होंने मॉन्यूमेंट्स को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के अभी भी जो लोग हैं वो अभी भी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अभी भी लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर दोबारा से वो हिंदुइज्म की तरफ आ रहे हैं वो। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, किस तरीके से आपका रिएक्शन लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।